Hello aspirants, Jai Hind. So welcome to your new YouTube channel, WellQs for Life. First of all, let me introduce myself, who I am. So my name is Shitan Misra. I'm a 3 times recommended candidate. Firstly, I was recommended from one FSB Dehradun, Uttarakhand for Air Force entry. Second time I was recommended from 3 FSB Gandhinagar, Gujarat for Air Force entry. And then third time I was recommended from 17 SSB SCS Bangalore for Army entry. Every time I was recommended from National Defense Academy examination, so I think that I'm enough eligible to tell you every single point from Flint to Paramount for SSB. So guys, can you please tell me why I took my channel name as OLQs for Life? Just because if you guys are thinking that you can prepare for SSB in several days, 1 day, 2 days, or a month, then I don't think so. I qualified 3 times for SSB interview, but what I know is if you are preparing for OLQs, then आपको वो daily lifestyle में लाना पड़ेगा at any cost. That's why I took the name as OLQs for life. Officer law qualities are not for 1 day, 2 day or 3 day. If you think कि आप 5 दिन का इंटरव्यू देने जा रहे हो and आप सिर्फ 5 दिन वहाँ पे दिखावा कर लोगे कि yeah you have that qualities, I don't think so. I took this name just because I want to tell you all guys कि अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको डेली लाइफ में ऑफिसर बन के रहना पड़ेगा. देयर आर 15 OLQs. मैं अभी बताऊंगा आगे. देयर आर 15 OLQs. आपको वो डेली इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में. डेली. आई टुक दिस हॉर्स एज आर मोटो जस्ट बिकॉज यू हैव टू रन until you win. घोड़े की तरीके भागना पड़ेगा आंख बंद करके और सामने देख के. अगल बगल नहीं देखना है. थोड़ा सा भी भटकोगे काम लग जाएगा. यार मैं जब फर्स्ट टाइम एनडीए का एसएसबी देने गया था, देयर वर ऑलमोस्ट 450 कैंडिडेट्स who reported. There are 450 plus candidates who are reported, and only 40 candidates got screened in. Can you guys guess the ratio or the percentage how much candidates gets in? There are only 40 candidates who get screened in, and at last 4 candidates got conference in. 4 candidates recommended. So if you guys think कि तुम सब काम कर लोगे उसके बावजूद रिकमेंड हो जाओगे, then I don't think so. Yeah, लक भी होता है मेरे भाई. अगर आप लक के साथ चल रहे हो then fine. No need to attend my YouTube channel because I don't think so is there any luck in this country or with me. मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं निकलूंगा, otherwise no one can qualify me for SSB interview. So guys, ये मेरा नया YouTube चैनल है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ मिल के रहें. I took the motto as breathe, trust and let's grow. Let's go, sorry. सांस लीजिए, अपने आप पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए. यार 3 times I got recommended, but still I was not able to make my name in final merit list. Let me tell you why not. First time I was recommended from Dehradun, got medically fit, but not able to see my name in final merit list. Second time I was recommended from Gujarat, but not able to qualify the medical criteria. Third time I was recommended but was not able to qualify the medical criteria. So you guys can see it's not as easy as much it seems. But no one can stop us from doing it. No one can stop me from doing it. यार मैं नहीं रुकने वाला हूँ जब तक मैं नई वर्दी पा जाऊंगा at any cost. And I am here to teach you all or to guide you all. I'm not a teacher. I will guide you all कि कैसे करना है. साथ में करेंगे, साथ में बढ़ेंगे और साथ में चलेंगे. Now it's your responsibility to subscribe my channel. We will do each and every part from day 1 to day 5. Yeah, let me tell you one more thing. मैं ऑफलाइन कोर्सेज करता था अभी तक, बट मैंने ऑफलाइन बंद कर दिया है. मैं ऑनलाइन कोर्सेज देता हूँ लड़कों को. एंड लेट मी टेल यू 15 out of 2 candidates, sorry, 2 out of 15 candidates made the name in final merit list of NDA this time. मैं उनसे आपकी मीटिंग कराऊंगा, लाइव क्लासेस कराऊंगा जब तक वो ट्रेनिंग में नहीं चले जाते हैं. ठीक है. दे आर एबल टू मेक, जस्ट दे हैवंट टू एनी कोचिंग फ्रॉम एनीवेयर. जस्ट आई जस्ट गाइडेड हिम. I haven't took any money from them. I just guided him and they made their name in final merit list.
ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम व्हाट आर OLQs। मैं वैसे टिपिकल OLQs नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल हैं जो कि आपको बता सकती हैं। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर। द फर्स्ट फैक्टर इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अपने आप से अच्छा कोई नहीं जानता है कि वो किस लेवल पे स्टैंड करता है और वो कितना ऑफिसर है। यू नीड नॉट टू टेल एनीवन हाउ मच ऑफिसर यू आर। ठीक है, नहीं फर्क पड़ता है दुनिया क्या सोचती है यार, जितनी वर्दी चढ़ेगी सब सही हो जाएंगे, सब कोई सही हो जाएगा, आई गारंटेड यू। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर चार फैक्टर हैं। फर्स्ट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सेकंड रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड द फोर्थ इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। एक एक पॉइंट में क्लियर नहीं करूंगा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताता हूँ कि विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट और कैन से द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम देम। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। गाइस, दिस इज द की टू क्वालिफाई फॉर SSB इंटरव्यू, योर पावर ऑफ एक्सप्रेशंस। मैं बताता हूँ अपने इंटरव्यू का। मैं 3 टाइम्स SSB इंटरव्यू दिया है और तीनों टाइम ऐसा होता है कि जब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको नहीं आते होंगे, और अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं इसने सब कुछ बता दिया है तो भाई हो सकता है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है, मेरे से क्वेश्चन पूछे गए, मैं नहीं बता पा रहा था, आई स्माइल एंड सेड सर आई डोंट नो। तुरंत पता चल जाता है कि आयु आपका आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये पावर ऑफ एक्सप्रेशन सोच। अगर आप अंडर प्रेशर आ गए, नो वन विल रिकमेंड यू एट एनी कॉस्ट, यू विल नॉट बी रिकमेंडेड। उनको वो बंदा नहीं चाहिए जो प्रेशर में रहे, दे डोंट वांट दीज गाइस। ठीक है, बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं ऐसे ही हो जाएगा सब, नहीं भाई, रेगुलर लाइफ में करना पड़ेगा। रेगुलर लाइफ में आपके ऊपर टेंशन आएंगी और आपको टेंशन को बताना है कि मैं नहीं डरता। पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एन इंटरव्यू। आप इंटरव्यूअर में और GTO में, GD में भी आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन का फैसला पड़ेगा। वो ऐसे टॉपिक बोलेंगे आपको नहीं आता होंगे। लेक्चरेट में ऐसा होता है, जो आपको नहीं आ रहा होता है पॉइंट, आपके सामने लड़के बैठे होंगे, अगर आप हंस के इस बात का सामना करते हो, उनको समझ में आ जाएगा कि यार वो जानते हैं कि आप अच्छे भले पढ़े लिखे हो, आपको अच्छी नॉलेज है, इस वजह से ही आप रिटर्न क्वालिफाई कर पाए हो। वहाँ वो आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ वो आपकी बॉडी की पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये इंग्लिश में लिखा है, इसको आप समझ लेना। ठीक है, द सेकेंड वन इज इंटेलिजेंस, effective intelligence. This one is the effective intelligence. As you can see, effective intelligence is the competency of a person to tackle practical problems and find out the best effective solution using all the available resources. GTO, जितने लड़के GTO दिए होंगे वो जानते हैं कि उनको बल्ली फट्टा और रस्सी दी जाती है, और कई ऐसी सिचुएशंस दी जाती हैं कि उनको फंसा दिया जाता है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो GTO आपको फंसाएगा। एवरी टाइम GTO मेरे पीछे पड़ गया था, ये रियलिटी है। मैं Day 1 to Day 5 हर चीज़ आपको बताऊंगा। मेरे पीछे पड़ गया था GTO, वो मुझको कठिन से कठिन प्रॉब्लम देते जा रहा था। कभी ब्लू को वाइट कर देते थे, कभी वाइट को ब्लू कर देते थे, लेकिन मैंने अपनी एक फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ एक्सप्रेशन संभाल के रखे हैं। आई हैवंट सो देम कि या मैं फट रही है, मेरी टेंशन है मेरे को। ठीक है, सो और सेकेंडली मैंने अपनी इंटेलिजेंस को शो की कि हाँ आई कैन टैकल ऑल दिस प्रॉब्लम। सो आपको भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा पतली गलियों से निकलने के लिए, just to qualify the HSB इंटरव्यू। ठीक है, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। इट टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन कि आप कम रिसोर्सेज में कितना ज़्यादा काम कर सकते हो। ठीक है, और ये आपको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आप एज एन ऑफिसर रिकमेंड हो जाते हो और होगे, आई एम इंश्योरिंग यू। आप ऑफिसर ऐसा रिकमेंड हो जाते हो, कहीं पहाड़ में जाते हो, यार मेरे ये बताओ तुम्हारे पीछे पूरी पूरी क्या फैक्ट्री चलेंगी कि तुम्हारे लिए सामान लेके चलेंगे? नो, आपके पास एक बैग होगा, उसमें इतना सामान होगा, उसमें से आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग। एक रस्सी है, उसमें से सबको चढ़ना है, एंड यू आर एन ऑफिसर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी बटालियन आपके साथ चलेगी। खाना थोड़ा होगा,
सबको शेयर करना पड़ेगा और उस हिसाब से करना पड़ेगा जब तक आप ऊपर नहीं चढ़ जाते हो या अपने रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच जाते हो। तो ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी हर चीज। आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को। लेक्चरेट, लेट अस टॉक अबाउट एसएसवी। मैं थोड़ा डीपली चला जाता हूँ यार, ठीक है। लेक्चरेट में हम लोग बात करते हैं तो लेक्चरेट में आपका टॉपिक मिलेगा एंड यू हैव टू स्पीक बिटवीन ऑल ऑफ देम। पावर ऑफ एक्सप्रेशन मैंने पहले बताया। सेकेंडली, आपको थॉट्स आ रहा है कि हाँ ठीक है मेरे को ये बोलना है वो बोलना है, बट अनटिल आप उन थॉट्स को एक ऑर्गेनाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। लेक्चरेट का कोई भी फायदा नहीं है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से होती है और एंड कंक्लूजन से होता है। कंक्लूजन को ऊपर कर दोगे, इंट्रोडक्शन नीचे कर दोगे, कोई भी फायदा नहीं है। तुरंत आपको दिख जाएगा कि आपका ऑफिसर आपसे खुश नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है यार, एसएसबी कुछ भी नहीं है। हाँ, और मैं एक चीज और बता देता हूँ, आई एम ए प्योर सिविलियन गाय। मेरा कोई आर्मी बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फादर आर्मी में नहीं है, मैं आर्मी स्कूल से पढ़ा नहीं हूँ, ना मैंने एनसीसी की है, बट स्टिल आई एम एबल टू क्वालिफाई द इंटरव्यू 3 times। इट मीन्स यू कैन क्वालिफाई टू। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज रीजनिंग एबिलिटी। एज यू ऑल गाइस कैन नो, आपका एक ओआईआर टेस्ट होता है फर्स्ट डे, होता है। कैन यू गाइस प्लीज टेल मी व्हाई दिस ओआईआर हैपेंस? ये क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि उनको टाइम चाहिए होता, मैंने बहुत सुना है लड़कों के दिमाग में मिथ होता है कि उनको टाइम चाहिए होता है आगे का प्रोसेस बढ़ाने के लिए। नहीं, आपकी रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाती है। ये फैक्टर 1 का फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट डे का फर्स्ट इम्पोर्टेंट है कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाती है। आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन होंगे और चारों सिमिलर होंगे and you have to find the right answer. It means there are 4 ways and you have to find the right way कि आप कहाँ अपनी बटालियन को लेके जाओगे। समझ में आया? आपको कठिन से कठिन सिचुएशन दी जाएंगी and you have to tackle it at any cost। समझ में आया? It tests the logical and rational thinking of a person under extreme situations and evaluating other solutions and choosing the best one। As I said it, आप समझ सकते हैं ये चीजें 4-5 दिन में नहीं प्रिपेयर होंगी। यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू क्वालिफाई। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू से आसान कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता एसएसबी इंटरव्यू से आसान। लोग लेक्चरेट को डरते हैं, लोग जीडी को डरते हैं, कुछ भी नहीं होता है। मैं आगे जीडी के ऐसे टॉपिक्स बता दूंगा, ऐसे प्रिपेयर करा दूंगा ना कि अगर आप, मैं बताता हूँ कि 15 कैंडिडेट्स को मैंने एसएसबी की कोचिंग दी थ्रू जूम ऐप और गूगल मीट। आउट ऑफ 15, 2 कैंडिडेट्स वर एबल टू मेक देयर नेम इन एनडीए फाइनल मेरिट लिस्ट एंड दे सेड कि सर जो जो आपने लेक्चर के टॉपिक दिए थे सब वही आए थे, सब कुछ वही आया था। जितना टाइम होता है सर कह रहा मैं उससे ज्यादा बोल सकता था। मेरे ऑफिसर ने बेल रिंग कर दी थी, कंक्लूजन मेरा हो गया था, हो चल रहा था, ऑफिसर ने फिर से बेल रिंग की बट आई वेंट स्टॉप्ड। मैं फिर भी बोलता गया। जब मैं स्टेज से उतरा ना, मेरा ऑफिसर हंस रहा था सामने से एंड एट दैट टाइम आई रिकॉग्नाइज कि मैं होऊंगा रिकमेंड एट एनी कॉस्ट, आई विल बी रिकमेंड। लेक्चरेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे बट नॉट इन द फर्स्ट वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज, ओके। सो कंटिन्यू टू फैक्टर 2। फैक्टर 2 इज सोशल एडजस्टमेंट। इसको मैं अपनी भाषा में समझाऊं अगर, तो आप कहीं खेलने जाते हो, होता है, मैं भी लड़ा हूँ मैच के लिए, ठीक है। तो आप जाते हो, आप सोशल एडेप्टेबिलिटी आपकी नहीं हो पाती, आप नई जगह खेलने जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, आप, हम लोग, सिर्फ आपको नहीं मैं अपने लगाऊंगा, मैं लड़ जाता था एक एक बॉल के लिए कि नो आई एम नॉट आउट। सबके साथ होता है, बचपना था यार, बट नाउ वी हैव टू चेंज दिस, ठीक है। सोशल अडेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर है कोऑपरेशन। जीटीओ आपका सब देख लेगा कोऑपरेशन कितना है। आप एक ऑफिसर के तरीके से सर्व करोगे, आपके पीछे आपकी पूरी बटालियन रहेगी, आपको पूरी बटालियन को लेकर चलना है और कोऑपरेट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं ऑफिसर और मैं हीरो हूँ। यू आर नॉट एन हीरो, यू आर सर्विंग फॉर आवर नेशन।
समझ में आ रहा है? पूरी बटालियन लेके चलनी, सबको खुश रख के चलना, नहीं पीछे वाला गोली मार देगा आपको, पता भी नहीं चलेगा वहां पे युद्ध में। समझे? द कॉपरेशन इज द foremost factor. The phrase "one man army" is a misnomer in the dictionary of a defense of teamwork is the most important aspect. Cooperation is the ability of a person to cooperation एक बहुत बड़ी नीड है, जरूरत है। और एक एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की मैं बात करूं, यू कांट सर्वाइव वन डे विदाउट कॉपरेशन इन दैट एकेडमी। लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे साथ के हो गए, मेरे को बताते हैं कि दे कांट सर्व फॉर वन डे, सर्वाइव फॉर वन डे विदाउट कॉपरेशन। एनडीए का कल्चर है कॉपरेशन का। एंड इफ यू गाइस आर थिंकिंग दैट यू वांट टू क्वालिफाई एनडीए और सीडीएस, ये तो करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। एंड कुछ भी हो जाए, देखो अपनी इज्जत बचा के रखनी है, कॉपरेशन भी करना है, ठीक है। सेकंड वन इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। If you guys are mature enough to qualify for NDA examination, then you need to know what is sense of responsibility, and you know, I know it, कि आपको पता है what is sense of responsibility। कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटना है। छोटे छोटे पॉइंट्स पे यार, कोई बड़ी बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स पे। अगर घर वालों ने बोला है कि ये काम करके दे दो मेरे को, कि ये चाहिए मेरे को, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करके दोगे उनको वो काम। स्टार्टिंग छोटे छोटे पॉइंट से करिए, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट से। एक एक पानी अगर एक बाल्टी ला के देना है घर में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ला के दोगे, और उसको रोकना नहीं है यार, उसको करना है, ठीक है। कोई भी छोटी छोटी चीजें हो, किसी पे टालनी नहीं है, आपको करना है, ठीक है। ऑफिसर बन जाओगे, इट डजंट मीन्स कि आपकी बटालियन आपका पूरा काम करेगी, नो। आप उस जगह हेड हो, एंड यू हैव टू शो द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर नेशन, फॉर योर बटालियन। सब कुछ करना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द फोरमोस्ट फैक्टर। इसको अंडरलाइन कर लो और इसको आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, अदरवाइज नो वन मेक्स यू रिकमेंड एट एनी कॉस्ट। ओके, सोशल एडेप्टेबिलिटी मैंने बता दिया यार। अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, सबके साथ एक अच्छी सराउंडिंग बना के रखो। इंटरव्यू पूछेगा कि आपकी दोस्ती कैसी है, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड यू हैव टू टेल देम राइट, ठीक है। वो भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट। सो फैक्टर 3 सोशल इफेक्टिवनेस। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। 450 लड़का आपके लिए आपके एसएसबी में आपके एसएसबी में रिपोर्ट करेगा। 450 लड़का, 400 लड़का। मैं बताऊं, इफ यू आर अ फ्रेशर, डर जाओगे, मेला लगा होगा वहां पे। आउट ऑफ 450 देयर आर ऑलमोस्ट 50 to 70 कैंडिडेट्स, माइट पॉसिबल मोर देन इट, जो कि आर्मी वालों के लड़के होंगे, आर्मी स्कूल से पढ़े होंगे, एनसीसी भी करे होंगे। यार डर जाओगे यार, क्या यहीं पे तुम्हारी बैंड बज गई? तुम आगे क्या जाके वहां पे दिखाओगे इंटरव्यूअर को, और फर्स्ट डे तुम क्या स्क्रीन करोगे? तुम वहां पे, मेरे बैच में मैं फ्रेशर था, सब फ्रेशर थे, लेकिन मेरे साथ एक लड़का था, दो लड़के थे जो कि आर्मी स्कूल से पढ़े हुए थे, आर्मी स्कूल से पढ़े हुए थे, एनसीसी करे हुए थे। अगर मैं डर जाता तो? क्यों डर जाओ यार, मैं भी फ्रेशर हूँ, वो भी फ्रेशर है। अगर वो पॉइंट जो टीचर ने बोला है, जो पिक्चर दिखाई गई है, अगर वो मैं लिख सकता हूँ, इट मीन्स मैं बोल भी सकता हूँ एट एनी कॉस्ट। वो मेरे से तेज कैसे बोल देगा? क्यों बोल देगा? मैं नहीं बोलने दूंगा यार इसको। उसको बताना है कि मैं सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ, बट स्टिल आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप उसके सामने खड़े हो, इट मीन्स उसने भी एनडीए क्वालिफाई किया है, आपने भी क्वालिफाई किया है। यू बोथ हैव दैट कैपेबिलिटी। डरना भी बिल्कुल भी नहीं है यार। 5 दिन, मैं रियली बताऊं, 5 दिन सिर्फ वहां आपको डराया जाएगा। आपका एसआरटी होगा, टैट होगा, सब कुछ सिर्फ डराने के लिए है। वहां पे 15-15 सेकंड देंगे एसआरटी लिखने के लिए आपको। डराने के लिए देंगे यार, वो आपको लिखने के लिए देंगे, वो डराने के लिए देंगे। दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट स्पीड ऑफ डिसीजन टू राइट इट और नॉट। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी हाल में गिरने नहीं देना है। दोस्ती बना के चलनी है, बट इट डजेंट मीन्स कि सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरा दोगे, अपना अपना कॉन्फिडेंस गिरा दोगे, ठीक है। सेकंड, द स्पीड ऑफ डिसीजन, एसआरटी, एज आई टोल्ड यू, 15 सेकंड्स। स्पीड ऑफ डिसीजन इज द फोरमोस्ट थिंग। मैं बताऊं, मैं एज एन एयरफोर्स पायलट सर्व करना चाहता हूँ माई नेशन के लिए। मैं बैठा हुआ हूँ राफेल पे, मैं उड़ा रहा हूँ। एट द मोमेंट मेरे प्लेन में कुछ हो जाता है,
मेरे पास फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स होंगे टू टेक द डिसीजन वेदर टू इजेक्ट और नॉट। यार 4 सेकंड भी इधर उधर हुआ तो मैं तो सही तो जाऊंगा। मर रहा हूँ रिकमेंड होने के लिए, पास होने के लिए, कि हाँ मेरा नाम भी फाइनल में एटलीस्ट में आए, मैं भी इस एकेडमी जाना चाहता हूँ। 5 से 10 सेकंड में मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसा तो पहले तुमको चाहिए नहीं। पीएबीटी टेस्ट, आई क्वालिफाइड इट, मैं बताऊंगा। पीएबीटी टेस्ट इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ डिसीजन। यू हैव टू टेक द डिसीजन इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। ठीक, स्पीड ऑफ डिसीजन हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। सो नाउ कमिंग टू एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। यार ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, जोश भरना पड़ेगा। वो बॉर्डर पिक्चर किसी ने किसने देखी है यार, मेरे को बहुत पसंद है। वो क्या नाम था उनका, मेजर कुलदीप सिंह, कैसे मोटिवेट किया था। सामने कितने बंदे थे, पाकिस्तान अपना बच्चा, कितने लोग थे अपने बच्चे वहां पे। कुछ सैनिक, एक छोटी सी बटालियन की आवाज सुन के हालत खराब हो गई थी सामने वाले बंदों की, हो गई थी, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। बट हम तो सच भी देख के जा रहे हैं, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। हाँ, बनाना है यार, एट एनी कॉस्ट बनाना है। ग्रुप को इन्फ्लुएंस करना है, इन्फ्लुएंस इन द सेंस नॉट फॉर निगेटिव थिंग्स, जो भर के रख देना है, फाड़ देना है एट एनी कॉस्ट, समझ में आया। आप क्रिकेट में कैप्टन बन रहे हो, टीम के कैप्टन, इट मींस यू हैव टू शो एवरी सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी, डिसीजन पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। तुम्हें बताना है कि कौन फर्स्ट उतरेगा, कौन सेकंड बैटिंग करने उतरेगा। अगर मैच हारते हो तो इसमें आप पे शक किया जाएगा कि यू डोंट हैव दैट क्वालिटी टू एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। ओके, a leader motivates his soldiers and faces the enemy when the odds are against him. A candidate must have this ability to inspire others and convince them to achieve the desired objective. मैं यार झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने ये लाइन बिल्कुल भी नहीं पढ़ी थी, मैंने इसको डाल दिया था इसमें। और मैं वैसे भी अभी तक मैं जितना, मैं सिर्फ अपने आप से बता रहा हूँ, और देखो मैंने जो बोला वही चीज लिखी हुई है यार, हर चीज सेम है। मैं फिर से कहूंगा, एसएसबी इज नॉट अ बिग डील। अगर आपके अंदर ओएलक्यूज हैं तो वहां निकल के आएंगी, और हम निकालेंगे यार, मिल के निकालेंगे, पढ़ाएंगे। सो इनिशिएटिव, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। कि मेरे को 0.7135 चाहिए, मेरे को कारगिल जीतना है। विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर पिक्चर तो देखी होगी। आपको ये होना चाहिए कि मेरे को ये करना है एट एनी कॉस्ट, वेदर द सिचुएशन इज विथ यू और अपोजिट ऑफ योर्स, मुझे करना है। A mark of great leader is to take the first step in an unfamiliar situation, sustain it and complete the task assigned to him. He said, ये दिल मांगे मोर, मैं नहीं रुकूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। वो बंदा शहीद हो गया हमारे देश के लिए, सिर्फ उसने इनिशिएटिव लिया था। कारगिल वॉर इज विद द नेम ऑफ विक्रम बत्रा। मेरे गूज बम्स आ चुके हैं यार, मैं बहुत ही ज्यादा अंदर से देश के लिए पागल हूँ। एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू बी पागल। बिना पागलपन के नहीं है यार, बिना पागलपन के नहीं मिलेगा। चाहिए तो चाहिए, नो मैटर सिचुएशन मेरे साथ है कि नहीं है, लेकिन मेरे को चाहिए। सो यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। कॉलेज में पढ़ रहे हो, टीम लीड करनी है, तुम इनिशिएटिव लो कि मेरे को करना है। जितने तुम टीम लीड कर लोगे तुम्हारी टीम जीत जाएगी। कई सारी ओएलक्यूज तुम्हारे अंदर आ गई और मेरे को कमेंट करना कि तुम टीम जीत, तो मैं बताऊंगा तुम्हारे अंदर कौन कौन सी ओएलक्यूज हैं। ठीक है, उनको तुम्हें बढ़ाना है खाली। लिवलीनेस, a candidate must have the capacity to remain happy at all time when facing stressful situation. A leader must be cheerful and inspire his colleague and junior to be the same. बता चुका हूँ यार, सेम चीज है। ठीक है, I'm not going to repeat it. You guys are enough mature to know this, to learn this. Okay. Now coming to the factor 4 and the last one, your determination. यार जितने लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो जानते हैं, विदाउट डिटर्मिनेशन नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, चाहिए डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन चाहिए ही। द डिटर्मिनेशन इज द tenacity to succeed even after facing numerous setbacks in pursuing a cause. यार मैं ये इंग्लिश नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, मैं ये बोलूंगा तुमको समझ नहीं आएगा। डिटर्मिनेशन इट मींस कॉन्टिन्यूस वे में करना है, पढ़ना है, प्रिपेयर करना है एसएसबी का। यार फर्स्ट टाइम नहीं जाएगा, सेकंड टाइम नहीं जाएगा, थर्ड टाइम नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। इंटरव्यूअर पे जब जाओगे तुम वहाँ पे पीआईक्यू दिखाओगे ना, तुम लिखोगे क्योंकि मैंने 7 बार एसएसबी दी है, इंटरव्यूअर की तड़ाम हो जाएगा।
लड़के के अंदर कितनी डिटर्मिनेशन है। तो वहाँ पे लिखा होगा ना कि मैंने 5 बार इंटरव्यू दिया है, 6 बार दिया है, इट क्लियरली शोज दैट यू हैव अ डिटर्मिनेशन टू क्वालिफाई और टू परस्यू योर गोल। आ रहा है, ठीक है। करेज, यार अब ये भी बताना पड़ेगा यार, तो फिर मैं चलूँ और पानी लेके मर जाता हूँ। ठीक है। करेज, मैं नहीं एक्सप्लेन करने जा रहा यार, पागल हो गया। मेरे को पता है सबके अंदर करेज है। अगर करेज नहीं होती तो बंदा पहले तो यार, तुम किसी से बोलो ना आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन और एनडीए एग्जामिनेशन, हालत खराब होती है लड़कों की सुन के, क्योंकि वो हुआ समझते हैं, वो मतलब इन्फिनिटी लेवल पे समझते हैं। यू हैव दैट करेज, आपके अंदर वो करेज है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो एनडी सीडीएस के लिए, यू आर प्रिपेयरिंग, दैट यू हैव दैट करेज, यू नीड नॉट टू शो एनीवन और टेल एनीवन। बॉर्डर पे जाओगे, गोलियां देख के फट जाएगी। करेज होगी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट एनी मोर। स्टेमिना, यार ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। मैं 6 फुट का बंदा हूँ, हाइट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। यार स्टेमिना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एनडीए में लड़के जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बताते हैं कि 30-40 किलोमीटर, 30 to 40 किलोमीटर डेली लीस्ट रनिंग है उनकी, लीस्ट। समझ आ रहा है। एकेडमी की बात छोड़ो, एसएसबी देने जाओगे, स्नेक रेस होती है, सुना होगा, उसको भी कभी क्लियर करेंगे, भागना पड़ेगा। भाई मेरे, यू हैव टू बी फिट। स्टडी इज इम्पोर्टेंट, प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी इज इम्पोर्टेंट, बट स्टेमिना इज इम्पोर्टेंट टू। जिम करो, बॉडी बनाओ। बॉडी बनाओ इन द सेंस कि ये नहीं कि एप्स बना लिए है यार, अच्छा है, बट पढ़ाई से हटना नहीं है। बॉडी को थोड़ा सा लेके चलना है, क्योंकि जब आप चाहोगे एसएसबी देने तो थोड़ा सा उनको चाहिए। अगर आप पेट निकाले हो, शोल्डर ढीले हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा कि लड़का ये क्विट कर देगा एकेडमी में, या इसको ट्रेन करने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है। सो यू हैव टू बी फिट। ओके, इज देयर एनीथिंग लेफ्ट जो मैं भूल रहा हूँ? गाइज, मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ चैनल जस्ट टू हेल्प यू गाइज। आई एम इंश्योरिंग यू कि मैं डेली एक वीडियो डालूंगा, 1 to 2 वीडियोस, ज़्यादा भी हो सकती है, मेरे मूड पे है डालूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को पढ़ना होता है ना। लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव 1K सब्सक्राइबर्स। सो दिस इज ऑल योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट अ 1K फैमिली। फिर 1K हो जाएंगे, मैं नॉट डेली बट हाँ ऑल्टरनेट डेज पे लाइव करूंगा, फ्री, टू टीच यू ऑल गाइज। एसआरटी कराएंगे, जीडी भी कराएंगे लाइव। मैंने गूगल मीट पे और सब पे, मैं अभी व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, आगे जाके सब कुछ होगा लाइव। तुम भी प्रिपेयर हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हर चीज करेंगे। बट 1K तो करना पड़ेगा यार, यूट्यूब वाले नहीं मानेंगे लाइव करने के लिए। मेक इट अ 1K फैमिली। एसआरटी डेली बेसिस पे करेंगे। एसआरटी इज इम्पोर्टेंट। टैट, थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, I will try to make videos soon on TAT, thematic or PPDT. This is the important factors to lecturate topics. Every single lecturate topic we will cover. GD topics we will cover. Current everything. Not I'm not going to take any current class, but मैं जो टॉपिक्स दूंगा उसमें से आएंगे, एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट। ओके, ऐसे कुछ नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा, साथ में चलना पड़ेगा। ठीक है। सो ये देखो, मैंने एसएसबी ये मैंने डाली है सारी फोटोज, जस्ट टू मोटिवेट यू ऑल गाइस। ये मेरा यार एनडीए चला गया भाई, रियली यार, आई एम नॉट एलिजिबल टू क्वालिफाई फॉर एनडीए एग्जामिनेशन राइट नाउ, बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीरियस एग्जामिनेशन। दिस इज माय गोल, ये मेरा गोल है, और इसको मैं अचीव करके रहूंगा एट एनी कॉस्ट। सब कुछ निछावर करने को तैयार हूँ तेरे लिए, एयरफोर्स एकेडमी। अब इनमें से आप चूज कर लो कि आपको किस में जाना है यार। चूज इन द सेंस टिकट लेके घुसना नहीं है, देना, सब कुछ देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा, समझाया? ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। अपने प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेश्चंस को कमेंट कर देना,
मैं शाम तक या कल एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा रिलेटेड टू एसएसबी, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एसएसबी। आप एसएसबी के बारे में पूछ सकते हो मुझसे फ्रॉम डे 1 to डे 5। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया यार मैंने। एवरी सिंगल क्वेश्चन यू कैन आस्क मी रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन। 4-4, 5-5 दिन के 3 बार मेडिकल दिए मैंने। 2 बार यार मेडिकल नहीं क्वालिफाई कर पाया। बस करो भाई, नहीं रो दूंगा अभी मैं। ठीक है ना, बट तुमको क्वालिफाई कराऊंगा मैं, ठीक है। वी आर नाउ वी आर फैमिली। मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर दूंगा, ठीक है। फॉर मेरिट लिस्ट यार डराती है मेरे को भी यार, बट तुम लोग को नहीं डरने दूंगा। ठीक है। सो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अ 1K फैमिली, जिससे हम सब कुछ लाइव कर सकें। सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल क्यूज फॉर लाइफ, लाइक दिस वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार, जबरदस्ती नहीं है। एज आई टोल्ड यू, अपनी बेइज्जती नहीं करानी है, ठीक है। सबसे बना के चलना, लेकिन बेइज्जती नहीं करानी है। तो लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब भी कर दो, इसमें तुम लोग का फायदा है यार। मैं यूट्यूब पे इससे पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मैं तुमको रियली बताऊँ। मेरे पास आज 20 लड़का डेली क्लासेस अटेंड कर रहा है, 20 गाइस। गूगल मीट पे चलता है, ओल सॉरी 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 सॉरी, गूगल मीट पे लाइव करते हैं हम लोग, जूम ऐप पे लाइव करते हैं और व्हाट्सएप पे लाइव करते हैं। होती है डेली जीडी होती है। अभी सुबह मैंने 20 लड़कों की जीडी कराई है आज, ठीक है। तो फाइन, लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वी विल मेट